Good morning, students. From last two parts of video, we just continue our third part of the chapter number 2, right? In first part of our video, we learnt about the components of food, the sources of food, and the better healthy habits, right? Now the second part we learnt about the deficiency disease. What is disease and the deficiency disease? You know now deficiency disease. Deficiency disease means that the proper component of food, lack of the proper component of food in your body, that is known as the deficiency disease. Disease have two types. First, communicable, that, and the second one is non-communicable. In last video, second video, we discuss about the non-communicable disease, that is deficiency disease, right? Now in this video we learn about the communicable disease. Now what is communicable disease? That's first of all we have to know that communicable disease, as a name suggests, that's communicate करना, मतलब बातचीत करना या एक से दूसरे की तरफ, right? Now the communicable disease means disease is spread one person to another, right? That is known as the communicable disease. For this, it is caused by the germs. We already discussed in the last video the small hint about the germs. That is, germs are bacteria, virus, protozoa and fungi, right? These are the germs, they are cause for this communicable disease. Here we I show you the pictures in our book, that is on page number 21. You can see very clearly that is the bacteria. First picture is for bacteria, second is for virus, third one is for protozoa and the fungi. That is not the enough picture. Only one selected pictures is given here, but more than one type of number of design or the structure of that microorganisms are there, but here just for your knowledge one pictures are given. Here the we take one by one microorganisms here, that what they spread or what they what disease for they cause. Here bacteria causes for plague, tuberculosis, that in common language we call it TB, typhoid, pneumonia and cholera, right? These are the diseases are caused by the bacteria only. Here the virus, common cold, जो सर्दी खांसी हमें लगी रहती है, that one, that polio, measles and chicken pox, flu and AIDS. These are the diseases which caused by viruses. Here the protozoa spread by the small insects. Here the first one is malaria, right? Malaria में हमने already देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कहीं पे कि जो फीमेल मॉस्किटो है वो क्या करती है, सक करती है ब्लड जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा या जिसको मलेरिया होगा, और फिर वो दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, तो वो जो जर्म्स वाला जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र करेगी किसको, हेल्दी पर्सन को, और मे बी अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो कॉज कर सकता है मलेरिया का, ठीक है। देन कालाजार, फिर एमोबिक डिसेंट्री मतलब पेट में मरोड़ आना, फिर बार बार आपका जो स्टमक है डिस्टर्ब रहता है और आपको लूज मोशन जैसा फील होता है, आप जा सकते हो बाहर बाथरूम में बहुत बार, दैट इज़ कॉल्ड एमोबिक डिसेंट्री। वो अमोबिया जो होता है उसकी वजह से होता है। देन फंगाई, इन्फेक्शन ऑफ स्किन डिजीज जो होता है वो फंगस से जल्दी स्प्रेड होता है। देन द एथलिक्स फुट मतलब जो ये जनरली किस में होता है कि द पर्सन हु इज़ वेयरिंग कंटिन्यूसली सॉक्स एंड शूज़, and during that the air is not passed through with the joints of the foot toes, so there is some fungus infection is there, that is called the athlete's foot. And then the ringworm मतलब दादर जिसको common language में हम कहते हैं, that is also caused by the fungus. These are the germs and these are their disease caused by them. Now one by one we learned about the one type of disease.
हियर इज़ द मलेरिया, फर्स्ट इज़ द मलेरिया। मलेरिया किससे होता है यहाँ हम देख लेते हैं, तो वो है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ मीन्स दैट वो जो मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो मच्छर है वो बाइट करेगा इन्फेक्टेड पर्सन को, वो फिर बाइट करके दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो फिर मलेरिया होगा। देन उसके सिम्टम्स क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इसको मलेरिया हुआ है। देन फीवर होगा उसको बहुत अच्छे से, और बहुत उसको शिवरिंग होगा, वो कांपेगा, ध्रुजेगा, तो दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ बहुत, एक तो फीवर होगा, सेकेंडली होगा तो शिवरिंग होगा। उसका मतलब हम रोक कैसे सकते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे अपने आप को, तो हम बचाव इस तरह से करेंगे। सेग्नेट मीन्स क्या हो जाएगा कि रुका हुआ पानी, सेग्नेट मतलब ठहरा हुआ पानी। तो जहाँ पे आप देखो कि गार्बेज डम है या फिर कहीं पे खड्डे हैं या फिर कुछ डिचेस हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज बहुत फास्ट होती है, उसकी वजह से जल्दी से वो स्प्रेड होता है। तो हम पहले क्या कर देंगे कि जो अवॉइड करना है, क्या करना है कि सेग्नेट ऑफ वाटर कूलर में अगर पानी ज़्यादा देर दिनों तक का हो तो उसको चेंज करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में आप जो पानी निकलता है जब हम इसको डिफ्रोज करते हैं तब, तो वो पानी हमें तुरंत फेंक देना चाहिए ताकि उसमें ये जो मॉस्किटोज़ हैं उसकी ब्रीडिंग रुक सके। अंडरस्टैंड। देन हमारे जो आसपास है, जो हमारे घर के सराउंडिंग है, वहाँ हमें चेक करते रहना चाहिए कि गार्बेज है, डंप है या नहीं, उसको क्लियरली रेगुलरली क्लीन होता है या नहीं, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा सामान तो नहीं है ना कि जिसमें पानी भरा होता है। सो वो हमें तुरंत खाली करना चाहिए, या फिर डिचेस ज़्यादा हो, खड्डे ज़्यादा हो तो उसमें मिट्टी डाल देनी चाहिए। तो दिस इज़ द वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द मलेरिया और द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज, तो अपने आप मलेरिया कंट्रोल में आ जाएगा। देन द नेक्स्ट वन इज़ द ट्यूबरकुलोसिस। तो उसका ट्यूबरकुलोसिस दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट टीबी, राइट। टीबी में क्या होगा कि कफ ज़्यादा हो जाएगा, जो पेशेंट होगा उसको फीवर ज़्यादा आएगा और चिल, ठंड बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगी, और वेट लॉस बहुत ज़्यादा, वीक दिखने लग जाएंगे। तो दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। उसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो फॉर प्रोटेक्शन वी कैन take that vaccine before that disease occur, right. Then the other one is the conjunctivitis, that is pink eyes, जो आप जनरली उसमें अखियाँ मिलाओ, जो ये कहते हैं ना कि कॉमन लैंग्वेज में कि आँख से आँख अगर अपने ऐसा पिंक आइज या रेडनेस हो जाती है तो उस पर हम स्पेक्स पहनते हैं जनरली ताकि वो स्प्रेड ना हो। तो ये उसमें हमारी जो आइज़ हैं वो रेडनेस दिखाने लग जाती है। दूसरी आइज़ के कोनों में दोनों साइड कहीं पे भी पस एक्यूमुलेट, जो वाइट कलर का सब्सटेंस होता है पस, वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, कलेक्ट होने लग जाता है। तो दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ द दैट कंजक्टिविटीज़ आइज़। नाउ नेवर टच, उसको हम रोक कैसे सकते हैं, उसके हम बच कैसे सकते हैं। नेवर टच योर आइज़। नाउ डेज कोविड में भी जो आपका जो सेंस ऑर्गन्स है, स्पेशली दैट आइज़, नोज़ एंड माउथ, उसमें आपका जो भी हाथ है या फिर वॉश किए बिना तो उसको टच करना ही नहीं अभी भी इस कोविड-19 में भी। और ये अगर डिजीज़ है तो उसमें भी आपको डायरेक्ट आपके जो गंदे हाथ हैं या फिर वॉश किए बिना के हाथ हैं वो कभी टच करना नहीं है। देन यूज़ हैंकरचिफ एंड टॉवल, जो हमेशा हमें हैंकरचिफ करना यूज़ करना चाहिए और टॉवल यूज़ करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द टाइफॉइड। टाइफॉइड में क्या होता है कि ये स्प्रेड होगा किससे, बैक्टीरिया से उसका कॉज है, राइट। बैक्टीरिया उसका कॉज है, तो वो जनरली होता है कि हमने खाने पीने में ध्यान नहीं रखा, या ख़राब खाना खाने में आ गया, या पानी ऐसा पीने में आ गया जिसमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, तो वो टाइफॉइड हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, सिम्टम्स होगा हेडेक, सर दर्द ज़्यादा हो जाएगा, फिर फीवर आपको बुखार हो सकता है, अपसेट स्टमक आपको मतलब पेट में दर्द हो रहा है, कभी कहीं पे दर्द होता है, कभी पेट में कहीं पे, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखा हुआ है, तो स्टमक में कहीं पे भी आपको पेन हो सकता है, या फिर आप लूज मोशन भी बार बार कर सकते हो। तो दैट इज़ द सिम्टम्स ऑफ दिस टाइफॉइड। अब उसको हम क्योर कैसे करेंगे या फिर उससे हम बचेंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू दैट, मेंटेन आवर सैनिटेशन।
जो भी हमारा वेस्ट करने का जो भी सैनिटेशन का जो भी प्रोसेस है वो अच्छे से होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, ताकि जब भी आप बाहर मतलब आप बाथरूम यूज़ करते हो उसके बाद आपको हाथ हैंड वॉश सोप से हमेशा धोने चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा पानी है पीने का और खाना वो हमेशा सेफ़ होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए, मेन चीज़। तो दिस आर सम precaution we can do for protect ourselves from this all germs or communicable disease. As I told you in previous lecture that it is spread by some agent. As we know that in first chapter we already learn about the dispersal agent, that is wind and all that. Here these germs also dispersed or they are spread out by some agents. I write here for you. It is spread by through air. जो germs हैं वो किससे spread होंगे? Through air. Secondly हो जाएंगे direct contact of the person. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है। थर्ड वन इज द इन्फेक्टेड फूड और वाटर। देन द लास्ट वन इज थ्रू द इंसेक्ट्स। One by one we discuss it. Here the first one is through air. एयर के थ्रू कैसे डिस्पोज होंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी को कोल्ड हुआ है या फिर हमने देखा कि जो भी वायरसेस के जो हैं डिजीज़ वो जनरली एयर के थ्रू, वायरस जो होता है एयर, अभी भी कोविड भी एयर से फैल रहा है, दैट इज़ वाई वी यूज़ मास्क। सो क्या करना चाहिए कि इफ़ the common cold is there, the person is there and it sneeze or cough or anything, that he or she don't use handkerchief, then that germs spread in air में spread हो गए। then the healthy person also present there in that air and it also breathing तो air के लिए हमें breathing के लिए air तो चाहिए ही, तो वो germs वाले जो भी air है वो healthy person लेगा तो उसको भी वो कफ एंड कोल्ड और जो भी डिजीज़ है वो हो सकते हैं। जनरली जो है जर्म जो होंगे वो कॉमन कोल्ड के होंगे। कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के। जो हमने कफ कर दिया तो उसके जर्म्स भी एयर में गए, फिर स्नीज़ कर दिया तो उसके जर्म्स भी एयर में गए, तो जो भी पर्सन इनहेल तो करने वाला ही है एयर को, तो उसके थ्रू वो स्प्रेड होता जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? वेन एवर यू स्नीज और कफ यूज़ हैंकरचिफ। हैंकरचिफ आपको यूज़ करना ही है। तो वो हमारा हो गया कि भाई उससे जो स्प्रेड होगा उसका जर्म्स का एयर के थ्रू वो कम होगा। देन द सेकेंड इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, छूने से भी हो सकता है, ऐसे भी कई डिजीज़ हैं। सेकेंडली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब हर बार यही नहीं होता कि पर्सन को ही छूना होता है, उसके यूज़ किए हुए कोई भी चीज़ें जैसे क्लोथ्स हो गए, टॉवेल हो गया, हैंकरचिफ हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, जो भी उसकी चीज़ें हैं अगर उसको यूज़ की हुई है उस पर्सन ने जिसको ये डिजीज़ है वो ही हमने यूज़ किए या फिर उसको टच किए तो भी वो हेल्दी पर्सन को हो सकता है। जनरली मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, ये सारे जो डिजीज़ हैं वो जनरली डायरेक्ट कांटेक्ट से होते हैं। आपने देखा होगा किसी को चिकन पॉक्स होगा तो वो स्कूल भी में नहीं आएगा हफ्ता भर तो, और
उस तरह से वो डायरेक्ट कांटेक्ट से, क्योंकि वो स्प्रेड हो जाएगा डायरेक्ट कांटेक्ट से, और स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो कांटेक्ट कैसे ना कैसे हो ही जाता है। तो व्हाट शुड वी डू दैट, डोंट यूज़ दैट यूटेंसिल्स और हैंडकरचीफ और टॉवेल, जो भी उसकी चीज़ें हैं उसको हमें यूज़ नहीं करना है। और जो पर्सन जिसको वो डिसीज़ हुआ है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, तो उनको एक सेपरेट रूम में ही रखना है, इसको आइसोलेटेड करके रख देना। जैसे अभी हम लोग आइसोलेशन में, जिसको भी हमें पता चलता है तो उसको आइसोलेशन में रखते हैं उस तरह से। देन द अनदर वन इज़ द इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। जो भी वेंडर्स होते हैं तो वो इतना हाइजीन थोड़ी रखेंगे हमारे लिए, तो मक्खी बैठती है तो वो गार्बेज में से लेके जो भी जर्म्स होंगे तो वो वेंडर की जो भी फूड आइटम है उसमें पानी पूरी आ गया, वड़ा पाव आ गया, सब कुछ आ गया उसमें, राइट। तो उस तरह का जो वेंडर्स है जो लारियों में लेके खाना बैठते हैं ओपन एरिया में और उसको अच्छे से कवर नहीं किया है, तो भी क्या हो जाएगा कि जो जर्म्स हैं, फ्लाइज और मॉस्किटोज़ और जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं जो फ्लाई करने वाले हैं, वो गार्बेज में बैठेंगे, वो सारे जर्म्स लाके किस में डाल देंगे, उनके खाने में, और वो खाने से फिर क्या फैलेगा, इन्फेक्शन फैल सकता है। वाटर में भी सेम, जैसे कि पीने का जो पाइपलाइन है और जो स्वेज जो पाइपलाइन है वो अगर मिक्सड अप हो गई तो भी हो सकता है। सो दैट वी हैव टू very sure that we have to use safe food and water, so the polio, typhoid, this type of the disease cannot be occur. Now the इंसेक्ट के बारे में हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, और अपना हो गया प्लेग हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सारे जो हैं वो होते हैं किससे, ये इंसेक्ट्स के थ्रू होते हैं। मच्छर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एडिनोफिलिस जो मच्छर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मलेरिया के लिए, राइट। फिर एडिस मच्छर है जो है, मॉस्किटो जो है वो है डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो प्लेग है, प्लेग जनरली जो फ्लाई होती है ना, फ्लीज जो होती है, फ्लीज वो बाइट करती हैं किसको, रैट को, और स्प्रेड होता है रैट से, तो उसका जो एजेंट हो गया वो फ्लीज हो गया। तो थ्रू दैट दिस प्लेग इज ऑल्सो अकर। सो दिस आर द सम एजेंट बाय द जर्म्स आर स्प्रेड to one man to another. Now our next topic is the prevention of communicable disease। जो हमारा ये हम डिस्कस तो कर लिया कि ये सारे डिजीज़ हैं और इनसे ये स्प्रेड होते हैं, जर्म्स के बारे में भी जान लिया, लेकिन हम इसको प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, उसको सेफ्टी कैसे। तो फर्स्ट चीज़ होगी हाइजीन। हाइजीन मतलब हमारा घर जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसमें अच्छे से क्लीनिनेस होनी चाहिए, जो टॉयलेट बाथरूम्स हैं उनकी क्लीनिनेस डेली होनी चाहिए। सराउंडिंग जो अपना है वहाँ पे अगर स्टैग्नेंट वाटर है तो उसको रिमूव करना चाहिए, या डिचेस है तो उसको सैंड से फिल कर देना चाहिए। अदर गार्बेजेस आर देयर, देन ऑल्सो वी हैव टू रिमूव दैट गार्बेज और क्लीन दैट गार्बेज। Okay, that's all for this video.